Take you live to Pragati Maidan, where Prime Minister Narendra Modi has arrived at the National Science Centre. केंद्र पहुंच चुके हैं। It's national. सभागार में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले सरदार पटेल पर जो डिजिटल एग्जीबिशन है, यूनाइटिंग इंडिया सरदार पटेल, उसे वह देखेंगे और यहां पर सरदार पटेल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते माननीय प्रधानमंत्री और जैसा कि भारतीय परंपरा है, कोई भी शुभ कार्य का आगाज दीप प्रज्वलित कर किया जाता है। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्यो मां अमृत गमया। Lead me from untruth to truth, from darkness to light, and from the fear of death to the knowledge of immortal eternity. Only yesterday, this great nation celebrated the festival of lights, Deepavali, and the light here symbolizing the path from ignorance to enlightenment. Mr. G. Parthasarathy there, the head of the special committee that was formed by the Ministry of Culture to design this digital exhibition. And since this is a digital exhibition, we will see a digital floral tribute to Sardar Patel Sahab now. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह डिजिटल तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर फ्लोरल ट्रिब्यूट देते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है डिजिटल इंडिया। कैसे तकनीक के माध्यम से हम रोचक और मनोरंजक तरीके से इतिहास को समझ सकते हैं। This exhibition will provide the visitors with a range of opportunities to engage with digital interactive installations to understand the role of Sardar Patel in the unification of India. The exhibition is developed on an infotainment approach to reach the target audience. It uses digital interactive installations, immersive audiovisuals, and this digital exhibition will now be open to the citizens of this great country as the Honorable Prime Minister is all set to cut the red ribbon and declare the digital exhibition open. Historic moment this, as the digital exhibition on the life and journey of Sardar Vallabhbhai Patel is open now. The exhibition has been broadly structured into 3 zones that will cover the journey of an independent, united India based on the suggestions of the special committee. There is an orientation film that would be shown to the visitor, and this film introduces the persona and character of the Sardar Patel. What was the vision of Sardar Patel will also be shown on an interactive wall display. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi now seeing the various exhibits. You can see in the background the signatures of princely estates. One of the big accomplishments of Sardar Patel was to convince the 565 princely states to become part of independent India. Sardar Patel was the man who shaped India, who ensured the map of India. And this is the portrait of Sardar Patel in his office. सरदार पटेल की इस प्रदर्शनी में आके आप सरदार पटेल के साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी असरदार वाणी सुन सकते हैं, क्योंकि जो एग्जिबिट्स यहाँ पे लगाए गए हैं तकनीक की माध्यम से वह बहुत ही इंटरैक्टिव हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, क्विज के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक
ग्रेफिटी वॉल भी है जहां पर आप पेंटिंग कर सकते हैं, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये यूनाइटिंग इंडिया है, जहां पर थंब इंप्रेशन से एक एकीकृत भारत की तस्वीर आती है। सामने पीछे पेंटिंग वॉल, और ये एग्जिबिट प्लेज इंडिया का है। We all need to pledge that we will contribute towards uniting India. मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं लाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। That's the pledge that every citizen of the country needs to take, and the Prime Minister taking that pledge and seeing the exhibits of Uniting India, Sardar Patel. There are various sections in this exhibit that will attract one and all. And now that the Honorable Prime Minister has inaugurated this digital exhibition on Sardar Patel, it is open for general public in coming days and weeks to come over at National Science Center right here on Nehru Marg in New Delhi to know more about the architect of India. The exhibit you can see is the one where you can take a photo. There's a virtual tour, interactive quizzes. There's a lot of archival material that is there. One can see the instruments of accession of the 565 princely states. There is also a what-if section, a visual experience about various possibilities. History had taken different course. What strategies did Sardar Patel use for accession? What kind of turbulence existed before the independence? How the integration of princely states happened? And all of this was an unparalleled achievement, and how integration of India was different than similar examples of integration from across the world, including Germany and Italy, is also shown in this exhibition. And after taking a round of the digital exhibition of Sardar Patel Uniting India, the Prime Minister will now come to this auditorium where he will also announce about Ek Bharat Shreshth Bharat scheme. एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम में किस तरह से भारत के विभिन्न राज्य संस्कृति का उजाला भर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में। हृदय से स्वागत करते हैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा, रिस्पेक्टेड श्री जी पार्थसारथी, चेयरमैन स्पेशल कमेटी और सचिव संस्कृति श्री एन.के. सिन्हा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतवासियों, स्वतंत्रता के बाद एक जद्दोजहद और भी थी, एक ज्वलंत प्रश्न और भी था, भारत को अखंड बनाए रखने का। आज हमारे सामने जो इतना बड़ा नक्शा है भारत का, उसे ये रूप देने में सरदार पटेल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये राष्ट्र हमेशा हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। सरदार पटेल का जीवन, कर्म, इन सब से जुड़े अनेक पहलुओं का एक बहुत ही सुंदर डिजिटल ताना बाना बुना गया है इस प्रदर्शनी में, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमल द्वारा आज किया गया। अब हम माननीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत संबोधन दें।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, विशेष सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री जी पार्थसारथी जी, संस्कृति सचिव श्री नरेंद्र सिन्हा जी और आज के इस शुभ अवसर पर पधारे सभी विद्वज्जन, अतिथिगण, बंधु भगिनी, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्वतंत्र भारत के एकता के सूत्रधार भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। सरदार कहते थे कि डर का सबसे बड़ा कारण विश्वास की कमी है। उनके अटूट विश्वास से ही भारत को एक नई मजबूती मिली। जिन्होंने जनशक्ति की एकता को आध्यात्मिक शक्ति की संज्ञा दी, भारत की एकता ही जिनके जीवन का ध्येय बन गया, ऐसे महापुरुष के जीवन कृत्य पर इस प्रदर्शनी की प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उस अटूट विश्वास की एक झलक हमारे प्रधानमंत्री जी में भी परिलक्षित होती है। मैं नमन करता हूं उस युग पुरुष को। आज पुनः भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। यह विश्वास ही है भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के स्रोत। 1921 में तिरंगे, हिंदी, खादी की भेंट देश को देने से लेकर खेड़ा, गोधरा, बारडोली के सत्याग्रह या गांधी जी के साथ लंबी लंबी जेल यात्राएं, बापू का यह सिपाही वल्लभ भाई देश का सरदार बनकर हर मोर्चे पर मुल्क की अगुवाई करता रहा। मगर सबसे बड़ा इम्तिहान तो जब आया जब बरसों के संघर्ष के बाद देश को स्वतंत्र होने का समय आया। देश मुल्कों में बंट रहा था। दूसरी तरफ 565 रियासतें और रजवाड़े भी अलग होने की राह देख रहे थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में यह केवल सरदार पटेल के प्रखर राज कौशल, दूरदृष्टि, दृढ़ता और धैर्य का ही कमाल था कि एक बिखरता हुआ देश एक मजबूत जनतंत्र बनकर उभर सका। यह हिंसक सत्याग्रही सरदार अगर देश की एकता और सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी तो हथियार उठाने से भी नहीं चूका, क्योंकि उसके लिए केवल एक चीज सर्वोपरि थी, सर्वोच्च थी, सर्वप्रथम थी, और वह थी भारत की अखंडता, एक भारत, एकीकृत भारत, यूनाइटेड इंडिया। यह उचित ही है कि सरदार के दिए इस एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए कृत संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी आज सरदार के जन्मदिन के अवसर पर सरदार पटेल के संघर्षों और सफलताओं पर बनी इस प्रदर्शनी को देश को समर्पित करने जा रहे हैं। यह प्रदर्शनी बनाने की प्रेरणा हमें देने वाले आदरणीय मोदी जी ने अपने अत्यंत व्यस्तता के बावजूद प्रदर्शनी बनाते समय बार बार जिस तरह अपना समय और मार्गदर्शन हमें दिया है, हम उनके आभारी हैं। मैं उनको शब्दों में नहीं बता सकता कि किस तरह प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एक पंक्ति, एक एक शब्दों पर अपना मार्गदर्शन दिया। यह और भी खुशी की बात है कि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को दी जा रही श्रद्धांजलि में हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। गृह मंत्री के तौर पर सरदार को बंटवारे के समय देश भर में फैली हिंसा से निपटने, लाखों शरणार्थियों को बसाने, प्रशासन, पुलिस तंत्र के लिए नए ढांचे बनाने की अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह सारे काम सरदार ने बड़ी सफलता से किए। आज हमारे गृह मंत्री जी उसी मनोभाव और धैर्य से तमाम देश के सामने उपस्थित अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। सरदार के जीवन पर जिस प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है, उससे हमारे देश की भावी पीढ़ी को निश्चित ही प्रेरणा मिलेगी। जिस तन्मयता से एक समिति का निर्माण हुआ और उसके अध्यक्ष का जिम्मेदारी जी पार्थसारथी जी को दी, जो मंच पर दाएं ओर उपस्थित हैं, उसी से इस प्रदर्शनी का आज लोकार्पण संभव हुआ। इस समिति के चारों अन्य सदस्य डॉक्टर रानी शंकर दास, डॉक्टर अमृता पटेल, डॉक्टर त्रिदीप सुहृद, डॉक्टर सरोज घोष को भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं संस्कृति मंत्रालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं, और मेरे सामने उपस्थित मेरे मंत्री गण के सहयोगी और वरिष्ठ जनों को आज मैं देख रहा हूं कि फौज की सेवाओं से भी जनरल साहब हैं हमारे बीच में, बहुत सारे वैज्ञानिक, वे सारे इतिहासकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स की एक आज जो मेरे सामने उपस्थिति है, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जिस महान व्यक्तित्व के सशक्त कंधों पर भारत की बुलंद इमारत तराशी गई, ये पोर्टल उसी महान पुण्यात्मा का जीवंत चित्रण है, जिसमें 1000 इमेजेस, 800 डॉक्यूमेंट्स और कई सारी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करते हैं कि कृपया ये वेब पोर्टल राष्ट्र को समर्पित करें।
धन्यवाद माननीय। एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये एक अद्भुत और क्रांतिकारी पहल है, जिसमें 2 राज्यों के बीच हर साल उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, व्यापार, भाषा, खान पान किया जाएगा। ये पहल विविधताओं के रंगों को एकजुट करके एकता की सुंदर रंगोली बनाएगी। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया एक भारत श्रेष्ठ भारत पोर्टल, लोगो और गीत का लोकार्पण करें। सतरंगी चूनर ओढ़ के सुर रंग बिरंगे जोड़ के लिए बोलियां हर प्रांत की वो चली। एक मुट्ठी भर त्योहार की कुछ मिट्टी तेरे गांव की लिए धड़कन हिंदुस्तान की वो चली। रे चली लहर चली सबको बांधे साथ, रे चली मिलाने पूरा हिंदुस्तान। धुन कोई उत्तर से चल दे, मृदंगम दक्षिण में बाजे, कावेरी बोले एक मिसरा, नर्मदा शहर कोई गा दे। रे चली लहर चली सबको बांधे साथ, हो ब्रिज में हो जब होली कच्छ पे रंग चढ़ा दे, जोड़ा बाल चरी का हिमालय को पहना के। वो चली रे चली, हाँ हाँ रे चली रे चली रे चली लहर चली सबको बांधे साथ, रे चली मिलाने पूरा हिंदुस्तान। यही लहर चलेगी जब भारत के सब राज्यों की बोलियां, कला, खेल और खान पान आपस में मिलेंगे। आओ मिलाए, आओ बनाए एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत ने भोर के माथे पर विजय का तिलक लगाया है। अब रोज सुबह सतरंगी रंगोली बनती है हमारी संस्कृति की। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कृपया एक भारत श्रेष्ठ भारत पुस्तिका का विमोचन अपने कर कमल द्वारा करें। ये स्मारिका पुस्तिका जिसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। एक और पुस्तिका है माननीय, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सामान्य उपयोग में आने वाले वार्तालाप के 100 वाक्यों का भारत की 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। एक पुस्तिका के रूप में मुद्रित किया गया है। इसे पुस्तक का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। अब इंडिया डिजिटल हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इसका ई पुस्तक के रूप में भी हम उपलब्ध कराएंगे इसके मुद्रण को। अब भारत में योजनाएं बनती भी हैं, उस पर अमल भी होता है। वक्त से पहले योजनाएं पूरी भी हो जाती हैं। सपने देखो वो झट से तुरंत पूरे भी हो जाते हैं। 6 MOUs 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के बीच देखिए साइन भी हो चुके हैं। मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से निवेदन करती हूं कि एक एक करके मंच पे आएं और ये MOU एक्सचेंज करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महाराष्ट्र और उड़ीसा गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स को। श्री SS क्षत्रिय, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, श्री गगन ढल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। छह पेयर्स यानी 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज। जी हाँ, ये MOU एक्सचेंज किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब MOUs बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। श्री RK श्रीवास्तव, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ गोवा, श्री अमित खरे, डेवलपमेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आमंत्रित करती हूं मैं मंच पर कि MOU एक्सचेंज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब और आंध्र प्रदेश, अब वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स मंच पर पधारेंगे। श्री लिंगराज पाणिग्रही, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड श्री K Shiva Prasad, रेजिडेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब।
बहुत बहुत धन्यवाद। MOU between Government of Haryana and Government of Telangana. Officials हैं मिस्टर धीरा कुंडेलवाल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और साथ ही बी वेंकटेशम सेक्रेटरी कल्चर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। अब संस्कृतियां इधर से उधर आदान प्रदान होंगी। MOU between Union Territory of Chandigarh and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli. Officials Shri Parimal Rai, Advisor to Administrator, Union Territory of Chandigarh. Shri Madhup Vyas, Administrator, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli. MOU between Government of Pondicherry and Union Territory of Daman and Diu. Officials हैं श्री MRM Rao, Secretary Government of Puducherry, श्री Vikram Singh Malik, Secretary Daman and Diu Administration. बहुत बहुत धन्यवाद। अब संस्कृतियों का रीति रिवाज का सफर शुरू होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत को बुलंदी पर पहुंचाते हुए। अब हम माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुनय करते हैं कि कृपया अपनी प्रखर वाणी में हम सभी को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी और इस कार्य के लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष आदरणीय पार्थ सारथी जी और संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री नरेंद्र जी सिन्हा, सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, कहीं जाएंगे उनका अभिनंदन होगा। लेकिन मैंने कहा हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आज के कई वर्षों पहले, शायद 45, 50, 55 वर्ष पहले, एक चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी राजनीतिक कुशलता, अपनी प्रशासनिक क्षमता और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सदाशयता के परिणाम स्वरूप हमें एक एकीकृत भारत दिया है, लगता है हम उस महापुरुष को जिसने हमें एकीकृत भारत दिया है और भारतीय संघ में 565 राज्य, रजवाड़ों, रियासत को मिलाने में कामयाबी हासिल हुई है, ऐसे महापुरुष को हम भूलते जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की इस चिंता का निवारण कर दिया। यह डिजिटल म्यूजियम बनाकर आपके ही मार्गदर्शन में बना है, मुझे जानकारी है। इसका जो आज लोकार्पण हो रहा है, इसके पहले भी आप यहां आ चुके हैं। कहां कमी है, क्या और करना चाहिए, यह सारा मार्गदर्शन आपने किया है। और जिस महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, हम उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष किसने कहा? लौह पुरुष की संज्ञा दी है इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन्होंने कि भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने का काम किया। लौह पुरुष की उपाधि दी उन नेताओं ने जिन्होंने कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया।
और भारत आजाद हुआ, उन्होंने लौह पुरुष की उपाधि दी। लेकिन जब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को मैं देखता हूं, जो कुछ भी हमारी थोड़ी बहुत जानकारी है, देवियों सज्जनों, मैं कह सकता हूं उन्हें केवल लौह पुरुष ही नहीं कहा जाना चाहिए, वह राष्ट्र पुरुष भी हैं और राज पुरुष भी हैं। जहां तक भारत राष्ट्र की एकता का प्रश्न है, वह असंदिग्ध है। प्राचीन ग्रंथों को उठाकर देखिए, भारत राष्ट्र की एकता के संबंध में सैकड़ों वर्ष पहले से, हजारों वर्ष पहले से यह उद्धरण मिलता है, आसेतु हिमाचल उत्तरयत यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्यो दक्षिणम। इस रूप में उदाहरण मिलता है भारत राष्ट्र की एकता के संबंध में। लेकिन यह सच्चाई है कि भारत राजे, रजवाड़ों, रियासतों में बटा हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अपने रियासतों को छोड़ना नहीं चाहते थे, भारतीय संघ में उसका विलय नहीं करना चाहते थे। लेकिन किसी को अपनी राजनीतिक कुशलता के द्वारा और जरूरत पड़ी तो शक्ति का प्रयोग करके भारतीय संघ में विलय कराने का काम और यह एकजुट भारत देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। यदि मैं कहूं कि आधुनिक भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आधुनिक राजनीतिक भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों की जानकारी में अब तक नहीं आ पाई है। कर्तव्य परायणता, और जब मैं उस कर्तव्य परायणता को मैं देखता हूं तो मेरा दिल कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को साधारण राजनेता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, एक स्थित प्रज्ञ मनीषी के रूप में देखा जाना चाहिए। आप सबको जानकारी होगी 1909 में बारेटलाव बैरिस्टर थे, एक केस लड़ रहे थे, मुवक्किल ने पैसा दिया था, अदालत के सामने खड़े थे, किसी ने आकर एक पेपर के, एक कागज के टुकड़े पर उन्हें एक सूचना दी कि आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। देखा उन्होंने, उसको जेब में रख लिया और बहस करते रहे और उस अपने मुवक्किल को विजय दिलाई। जब लोगों ने पूछा कि पटेल जी, आप रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए पत्नी के निधन का समाचार प्राप्त करने के बावजूद, तो पटेल जी ने यही कहा, उन्होंने कहा, मैं उस समय अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। जिस व्यक्ति ने न्याय हासिल करने के लिए मुझे फीस दी थी, उसे न्याय दिलाना यह मेरा पहला कर्तव्य था, इसलिए उसी कर्तव्य का मैं निर्वाह कर रहा था। यह कोई साधारण बात नहीं है। कई चीजें हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। लोग तुलना करते हैं जर्मनी के बिस्मार्क से कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। मैं तुलना करने वाले इतिहासज्ञों से भी यहां मैं अनुरोध करना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसी से तुलना मत कीजिए। बिस्मार्क थे, अच्छा काम किया, बड़ा काम किया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो काम किया वह अतुलनीय है, किसी से यह तुलना नहीं की जा सकती है। बिस्मार्क की अपनी सांगठनिक कुशलता थी, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 565 रजवाड़ों को एकत्रित करने की अपनी सांगठनिक कुशलता थी, यह तुलना नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठा की तुलना अब्राहम लिंकन के साथ की जाती। महापुरुष होता है, मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन हम मानते हैं, हमारी व्यक्तिगत धारणा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यह अतुलनीय है। चाणक्य जैसी राजनीतिक गहराई यदि किसी महापुरुष के अंदर उस समय थी तो उस महापुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अद्भुत व्यक्तित्व,
ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज को नए भारत के अनुरूप एक नया स्वरूप देने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्हें बहुत सारे लोगों ने उसमें पैट्रन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा था। और प्रधानमंत्री जी, सचमुच आपने कितना अध्ययन किया होगा, जो सरदार पटेल जी के बारे में आपका मन कहा होगा कि सरदार पटेल जी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं पुनः आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको बधाई भी मैं देना चाहता हूं कि सचमुच स्वतंत्र भारत के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के साथ आपने प्रधानमंत्री होते हुए इंसाफ किया है, न्याय किया है। और आज के अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, संयोग देखिए, पटेल जी ने एक झूठ भारत दिया और आज के हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत दे रहे हैं, श्रेष्ठ भारत दे रहे हैं, स्वच्छ भारत दे रहे हैं, स्वस्थ भारत दे रहे हैं और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं। और आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं समझता हूं कि यदि अपनी संपूर्ण ऊर्जा हम अपने दैनंदिन कार्य बहुत सारे करते हैं, लेकिन हर अपने कार्य के समय यदि हम सचेष्ट रहें, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, यही पुनीत हमारा कर्तव्य है। और अपनी पूरी ऊर्जा भारत की एकता और अखंडता के प्रति यदि हम समर्पित करते हैं, तो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः इस समिति के अध्यक्ष पार्थ सारथी जी और हमारे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर महेश जी शर्मा और उनके सचिव श्री नरेंद्र सिन्हा और पूरे जितने भी लोग इस काम में लगे थे, मैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए और पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प के चरम उत्कर्ष, सर्वधर्म समभाव के प्रबल समर्थक, ऐसा सरदार जो अपने उद्देश्य को मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, ऐसा लौह पुरुष जो कठिन परिस्थितियों में भी लौह स्तंभ की तरह सीधा खड़ा रहता है। जब हम सरदार पटेल के इन गुणों की गर्व से चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी गुणों की परछाई प्रेरणा के रूप में हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में साफ दिखाई पड़ती है। सरदार पटेल ने भारत को संगठित कर एक किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम विविधताओं से भरे भारत को एक ही रंग में रंग दिया। जानते हैं वो कौन सा रंग है? वो है विकास का रंग। भारत के विराट स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हम सबको संबोधित करें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश के गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मंत्रिपरिषद के साथी श्री महेश शर्मा जी, इस काम को परिपूर्ण करने के लिए एक छोटी सी समिति बनाई थी जिसकी अध्यक्षता श्रीमान पार्थ सारथी जी कर रहे थे और करीब 1.5 साल इसे कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग जाए, ये सारा कार्य संभाला, काफी समय दिया। ऐसे श्रीमान जी पार्थ सारथी जी, विभाग के सचिव नरेंद्र जी और उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधु भगिनी,
31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती जब हम सरदार साहब की जयंती मना रहे हैं और जब हम एकता की बात करते हैं तो पहले तो संदेश यही साफ है कि मैं भाजपा वाला हूं, सरदार साहब कांग्रेसी थे। लेकिन उतने ही शान से, उतने ही आदर के साथ इस काम को हम कर रहे हैं, क्योंकि हर महापुरुष के अपने अपने कालखंड में अलग अलग विचार रहते हैं और विचार के साथ विवाद भी बहुत स्वाभाविक होते हैं। लेकिन महापुरुषों के योगदान को बाद की पीढ़ियों ने बांटने के लिए उपयोग करने का हक नहीं है। उसमें से जोड़ने वाली चीजें ढूंढना, अपने आप को जोड़ना और हर किसी को अगर जोड़ पाते हैं तो जोड़ने का प्रयास करना, मैं हैरान, कुछ लोग मुझे इस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कौन होते हैं सरदार साहब की जयंती मनाने वाले। ये बात सही है, लेकिन सरदार साहब ऐसे थे कि जिसके परिवार ने कोई कॉपीराइट लिया हुआ नहीं है। और वैसे भी एक ऐसा जीवन सार्वजनिक जीवन में जिसने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया था। जो भी किया, जितना भी किया, दायित्व के रूप में किया, जिम्मेवारी के रूप में किया, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए किया। अगर ये बातें आज की पीढ़ी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो हम किसी को कह सकते हैं भाई ठीक है, परिवार है, लेकिन थोड़ा देश का भी तो देखो। और इसलिए ऐसे अनेक महापुरुष, कोई एक नहीं, अनेक महापुरुष हैं जिसके जीवन को नई पीढ़ी के सामने आन बान शान के रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए। और बहुत कम बातें हैं जो बाहर आती है, वरना तो हमारे देश में किसी को याद रखने के लिए जितना काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने महान थे, इतने महान थे, इतने महान थे कि उनको बुलाने के लिए भी 70 साल तक प्रयास किया, सफलता नहीं मिली है। और इसलिए कई बातें, सरदार साहब के जीवन की कई बातें ऐसी हैं। कभी कभी हम सुनते हैं शासन व्यवस्था में विमेन रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए आरक्षण, आपको ढेर सारे नाम मिलेंगे जो क्लेम करते होंगे या उनके चेले क्लेम करते होंगे कि विमेन आरक्षण का क्रेडिट फलाने फलाने को जाता है। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसमें 1930 में जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने 33% विमेन रिजर्वेशन का प्रस्ताव किया हुआ है। अब जब वो मुंबई प्रेसिडेंसी को गया तो उन्होंने इसको
कचरे की टोकरी में डाल दिया, उसको मंजूर नहीं होने दिया। ये चीजें एक दीर्घदृष्टा महापुरुष कैसे सोचते हैं, इसके उदाहरण है। सरदार साहब के व्यक्तित्व की झलक महात्मा गांधी ने एक जगह पे बड़े मजेदार लिखी है। अहमदाबाद के वो म्युनिसिपालिटी के अध्यक्ष थे, तो वहां एक विक्टोरिया गार्डन है अहमदाबाद में, और ये सरदार साहब कैसे सोचते थे, उन्होंने विक्टोरिया गार्डन में लोकमान्य तिलक की प्रतिमा बिठाई। कैसा लगा होगा उस समय अंग्रेजों को, आप कल्पना कर सकते हैं। और शायद देश में वो अकेली लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा है जो सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने कल्पना की और वो बनाई है। बड़ी अच्छी प्रतिमा है। और दूसरी विशेषता, गांधी जी को आग्रह किया कि इसका लोकार्पण आप करो। और तीसरा, उन्होंने कहा मैं नहीं रहूंगा। और गांधी जी ने उस दिन डायरी पे लिखा है, उस उद्घाटन के समारोह में उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कौन बैठा है, उसको अगर जानना है तो इस निर्णय से पता चलता है कोई सरदार बैठा है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, मुझे वाक्य पूरा याद नहीं है, लेकिन ये गांधी जी ने खुद ने कि सरदार ही अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में आए हैं, मतलब अहमदाबाद में हिम्मत आई है, इस प्रकार का भाव उन्होंने व्यक्त किया। हम इतिहास में इस बात को जानते हैं, उसको वैसे ठीक ढंग से रखा नहीं जाता है। किसी दल के इतिहास को देखें तो भी इन पेजेज को कहीं शायद ढूंढना पड़े, हाल है। देश आजाद हुआ तब नेतृत्व देने का विषय था। राज्यों की तरफ से जो प्रस्ताव आए वे बहुतेक सरदार साहब के पक्ष में आए, पंडित नेहरू के पक्ष में नहीं आए। लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा था, उनको लगा नहीं सरदार साहब होने के बजाय कोई और हो तो अच्छा हो। नेहरू को बनाने में उनको जरा शायद मन में ये भी रहा हो, मैं नहीं जानता रहा हो, लेकिन शायद मैं भी गुजराती और इसको भी गुजराती को बनाऊंगा तो पता नहीं। खैर ये तो मेरा साहित्यिक तर्क है, मेरे पास ऐतिहासिक प्रमाण वगैरह रही है, मैं मजाक में कह रहा हूं। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई देखिए सरदार सब कैसे, कोई रिवोल्ट नहीं किया, तूफान खड़ा नहीं किया। तो एक म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष का मामला हो तो भी अच्छा, मेरे पास 30 लोग हैं, आ जाओ, यही होता है जी। ऐसा नहीं किया। लेकिन ये नहीं किया, ये बात उतनी ज्यादा उजागर नहीं होने दी जा रही है, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सरदार साहब कौन थे, इस बात का पता एक और घटना से मिलता है। 1 नवंबर 1926, यानी ठीक कल 1 नवंबर है, 90 साल पहले, जबकि सरदार साहब अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था। अब सबका आग्रह था कि अध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एक रहे तो इस कारोबार को चलाना सुविधाजनक होगा। तो सबके आग्रह पर सरदार साहब चुनाव में खड़े हुए। उनके सामने एक मिस्टर दौलत राय करके थे, वो खड़े हुए और दोनों को 23-23 वोट मिले। तब कास्टिंग वोट आया अध्यक्ष को करने का, जो सरदार पटेल थे।
स्वयं उम्मीदवार भी थे और समय को कास्टिंग वोट करना था। और देश को आश्चर्य होगा, सरदार पटेल ने अपने खुद के खिलाफ वोट किया था। जो बात देश की आजादी के समय महात्मा गांधी के नजरों के सामने हुई थी, वो बात 1 नवंबर 1926, 90 साल पहले एक महापुरुष ने, जिस पर कोई गांधी का व्यक्तित्व का दबाव भी नहीं था उस समय, उनकी आत्मा की आवाज कह रही थी कि मुझे इस म्युनिसिपालिटी को चलाना है, कास्टिंग वोट से मैं बैठूं ठीक नहीं है, अच्छा होगा कास्टिंग वोट मेरे विपक्ष को मैं दे दूं और उसको मैं बिठा दूं। और बिठा दिया। क्या ये चीजें वर्तमान के राजनीतिक जीवन के हर छोटे मोटे व्यक्ति को सीखने के लिए काम आने वाली है कि नहीं है? अगर है तो उसको उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस इतना सा काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप कल्पना करिए, कोई बहुत पुरानी इतिहास तो है नहीं, 47, 48, 49 का कालखंड। आज साहब कितना ही बड़ा नेता एक म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष को कहे कि भाई ठीक है तेरा सब कुछ है, मान लिया, लेकिन मेरा मन करता है तुम छोड़ दो। छोड़ेगा क्या कोई? उसकी पैतृक संपत्ति है क्या? उसके मां बाप ने मेहनत करके पाई हुई है क्या? लोकतंत्र में लोगों ने मौका दिया है, 5 साल के लिए दिया है, और जरूरत पड़ गई कि भाई 3 साल के बाद तुम छोड़ दो। कोई मुझे बताए छोड़ेगा क्या? और पता नहीं छोड़ेगा तो क्या कुछ करेगा। इस बात को तो हम भली भांति समझते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। यहां भी साहब कोई बड़ा मेहमान आ जाए, कुर्सी छोड़नी होगी तो हम ऐसे देखेंगे। ऐसा लगेगा उसको पता ही नहीं वो आए हैं। मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है साहब। हम बस में, विमान में दौरा कर जाते हैं, कभी ट्रैवलिंग करते हैं, बगल वाली सीट खाली है, हमने अपनी किताब रखी, मोबाइल फोन रखा, और जहाज चलने की तैयारी में है, बस चलने की तैयारी में है, इतने में लास्ट मोमेंट कोई पैसेंजर आ गया। वो सीट तो हमारी नहीं थी, खाली थी, और हमने कुछ रखा था। हमको इतना आदमी बुरा लगता है यार, ये कहां आ गया, सब उठाना पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूं ना, लेकिन आपको पूरा भरोसा, मैं आपकी बात नहीं बता रहा हूं। मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन आप कल्पना कीजिए इस महापुरुष का व्यक्तित्व कैसा होगा। सरदार साहब के अंदर वो कौन सा तेज पुंज होगा, ऐसे ऐसे रजवाड़ों के पास गए जिनके पूर्वजों ने अपनी तलवार की नोक पर पाई हुई सत्ता थी ये कभी अपने बाहुबल से पाई हुई थी, अपने पूर्वजों ने बलिदान दिए थे। लेकिन सरदार साहब ने कहा भाई वक्त बदल चुका है, देश चाहता है, और उन्होंने पल भर में सिग्नेचर कर दिया। पूर्वजों का सैकड़ों साल पुराना राजा रजवाड़ा का राजा पाठ दे दिया एक इंसान को। साहब कल्पना कीजिए उस व्यक्तित्व की ऊंचाई कितनी बड़ी होगी। मैं गुजरात से हूं। गुजरात में क्षत्रिय और पटेल लंबे अरसे से एक प्रकार से
तू मैं वाला मामला रहा है। पटेल खेती करने वाले लोग, उनको लगता था ये लोग हमें दबाते हैं, उनको लगता है इनको कुछ समझ नहीं है, हम राजा लोग हैं, वगैरह वगैरह चलता रहता है समाज में हमारे यहाँ कई छोटी बड़ी। साहब कल्पना कीजिए, एक पटेल का बेटा क्षत्रिय राजनेता राजपुरुष को कह रहा है छोड़ दो, और एक पटेल बेटे की बात मानकर के क्षत्रिय छोड़ देता है। समाज में इससे बड़ी ताकत क्या होती है? कितनी बड़ी ताकत है। और उस अर्थ में हम देखें, एक एक पहलू सरदार साहब की सामर्थ्य को प्रकट करने का प्रयास, यहां एक डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है। ये संपूर्ण सरदार तो हो नहीं सकते हैं, हम सब मिलकर कोशिश करें तो भी सरदार इतने बड़े थे, कुछ न कुछ तो छूट ही जाएगा। लेकिन सबने मिलकर के कोशिश की है, और संपूर्ण सरदार को पाने, देखने, समझने के लिए खिड़की खोलने का काम इस प्रयास में है। मैं इतना ही दावा करता हूं, ज्यादा नहीं करता हूं। आधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास किया गया है, घटनाओं को जीवित करने का प्रयास किया गया है, और मूल संदेश यह है कि आज की पीढ़ी की जिम्मेवारी है भारत की एकता को बल देना। हम लोग सुबह शाम देखते होंगे, ऐसा लगता है जैसे हम बिखरने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। जैसे हम बाइनोकुलर लेकर के बैठे हैं, किसी कोने में बिखरने की चीज मिलती, पकड़ो यार, बिखराव लाओ, बांटो, तोड़ो। विविधताओं से भरा हुआ ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। हमें प्रयत्न पूर्वक एकता के मंत्र को जीना पड़ेगा, जी करके दिखाना पड़ेगा, और एक प्रकार से वो हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंतर साध्य करना पड़ेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संक्रमित करना पड़ेगा, परकोलेट करना पड़ेगा। हम इस देश को बिखरने नहीं दे सकते, और तब जाकर के हमें ऐसे महापुरुष का जीवन, उनकी बातें हमें काम आती है। इतिहास गवाह है, किसी समय भी तो अंतर विरोधों के कारण, अहंकार के कारण, मेरे तेरे के भाव के कारण यह देश सामर्थ्यवान था, फिर भी बिखरा था। एक चाणक्य नाम का महापुरुष था, 400 साल पहले उसने पूरे हिंदुस्तान को एक करने का सफल प्रयास किया था, और हिंदुस्तान की सीमाओं को कहां तक ले गया था। उसके बाद सरदार साहब थे जिन्होंने इस काम को किया। हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। आपने देखा होगा, हमारा कोई बच्चा स्पेनिश लैंग्वेज सीखता है तो हम घर में जो भी मेहमान आए उसके सामने नमूना पेश करते हैं। मेरे बेटे को स्पेनिश आता है, मेरे बच्चे को फ्रेंच आता है। अच्छी बात है, मैं इसकी आलोचना नहीं करता। हर एक को लगता है अपने कैरियर में जरूरी है, लेकिन कभी इस बात का गर्व नहीं होता है हम पंजाब में पैदा हुए, लेकिन मेरा बच्चा है मलयालम भाषा बहुत अच्छी बोलता है। ये कहने का मतलब हम उड़ीसा में रहते थे, लेकिन मराठी बहुत बढ़िया बोलते थे, उसको मराठी कविताएं आती है। हमारे बच्चा है रेडियो पर सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनता है, उसको बंगाली गीत बहुत अच्छे लगते हैं, रविंद्र संगीत उसको बहुत प्यारा लगता है। ये मन क्यों नहीं करना चाहिए? मैं पंजाब में रहता हूं, लोग कभी मेहमान आते तो कहता हूं हमें डोसा बनाना आता है। ये तो सीख गए हैं,
मैं केरल जाऊं, कोई कहे मोदी जी आप आए, चलो ढोकला खिला देता हूं। इन चीजों ने तो हमें थोड़ा बहुत अंतर संपर्क बढ़ा रहा है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक हमने हमारे देश को जानना चाहिए, जीना चाहिए, हमें अपना विस्तार करना चाहिए। मैं किसी एक राज्य में भले पैदा हुआ, एक भाषा में भले पढ़ा बढ़ा, लेकिन ये मेरा देश है, सब कुछ मेरा है, मुझे उसके साथ जुड़ना चाहिए। ये गौरव का भाव हमें एकता के मंत्र को जीने के लिए रास्ता दिखाता है। हमारे देश में इस बात का तो बहुत झगड़ा हुआ, हिंदी भाषा को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम केयरफुली, कुशलतापूर्वक सब भाषाओं को अपने में समेटे तो इस संघर्ष के लिए कोई चांस नहीं है जी। आप देखिए, कभी कभी कोई शब्द हमें ध्यान नहीं आता है तो हम अंग्रेजी शब्द का उपयोग करते हैं। अपनी भाषा में समझता नहीं तो हम बड़ी आसानी से अंग्रेजी शब्द बोल देते हैं। लेकिन कभी कभार ध्यान में आता है मेरी भाषा में अच्छा शब्द नहीं है तो मैं अंग्रेजी की मदद लेता हूं। लेकिन अगर मराठी भाषा देखूं, बंगाली देखूं, तमिल देखूं तो इसके लिए बढ़िया शब्द उन्होंने खोज के निकाला है, मैं क्यों ना उसको एडॉप्ट करूं। मैं आसानी से मेरे देश की किसी भाषा का अच्छा शब्द है तो एडॉप्ट क्यों ना करूं। लेकिन ये मुझे ज्ञान ही नहीं है, उस अज्ञान में से मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, अपनों को जानना चाहिए। ये एक छोटा सा प्रयास है, इसमें बोल चाल के 100 वाक्य निकाले। कैसे हो, नजदीक में अच्छा खाना कहां मिलेगा, इस शहर की जनसंख्या कितनी है, ऑटो रिक्शा का स्टैंड कहां, छोटे छोटे सवाल। मुझे बीमारी जैसा लगता है कि नजदीक में कोई डॉक्टर मिलेंगे क्या, ऐसे छोटे छोटे वाक्य। हर भाषा में वो वाक्य उपलब्ध है। जिस दिन लोगों के हाथ में ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसको लगेगा अच्छा भी हम केरल जा रहे हैं, चलिए यार 100 वाक्य पकड़ ले, कि मुश्किल नहीं हो जाएगा, इससे बात कर लेंगे, मिल जाएगा। हमारी अपनी विरासत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कार्यक्रम को आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च कर रहे हैं। और प्रयास शुरू में ये है, आपने देखा होगा देश में हर किसी को ग्लोबल बनने का तो बड़ा आवश्यकता भी है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। एक राज्य रशिया के एक राज्य के साथ तो जुड़ जाएगा, एक शहर अमेरिका के एक शहर से तो जुड़ जाएगा, लेकिन मेरे अपने देश में मैं किसी शहर से जुड़ूं, मैं अपने ही देश में किसी राज्य से जुड़ूं, मैं अपने ही देश में किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ूं, इन चीजों को हम क्यों नहीं करते। ये सहज चीजें हैं जो ताकत बढ़ाती हैं। आज जिन 6 राज्यों ने दूसरे के राज्य के साथ समझौता किया है, उसका मतलब हुआ कि 1 साल के लिए ये राज्य उस राज्य के साथ अलग अलग प्रकार के ऐसे काम करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को भली भांति समझे, सहयोग करें और विकास की यात्रा में सहयात्री बने। कार्यक्रमों का स्वरूप बड़ा बोझिल रखने की जरूरत नहीं, हल्का फुल्का। मान लीजिए केरल ने महाराष्ट्र के साथ समझौता किया, अच्छा मान लीजिए उड़ीसा और महाराष्ट्र हुआ शायद, उड़ीसा और महाराष्ट्र किया ना, है? मान लीजिए उड़ीसा और महाराष्ट्र ने समझौता किया। क्या हम 2017 में महाराष्ट्र की स्कूलों कॉलेजेस से जो टूरिस्ट जाएंगे उनको कहेंगे भाई 2017 में तो आप उड़ीसा जरूर जाइए। उड़ीसा से जो जाएंगे 2017 में टूर के लिए, टूर में तो जाते ही है, आप इस बार महाराष्ट्र जाएंगे। फिर ये भी तय कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी उस जिले में गई थी तो ये यूनिवर्सिटी उस जिले में जाएगी, जोड़ सकते हैं। पहले जाते थे धर्मशाला में या होटल में रहते थे, इस बार तय करें नहीं, इस योजना के तहत आए हो, 100 स्टूडेंट आए हैं
हमारी इस कॉलेज के 100 स्टूडेंट के घर में आपके 100 लोग रहेंगे, 100 परिवार। और जब घर में रहेंगे तो सुबह कैसे उठते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या वैरायटी होती है, माँ बाप के साथ क्या, सब चीजें अपने आप जीने लगेगा। अब इसके लिए खर्चा भी कम हो जाएगा टूरिस्ट का। मैं मूलतः तो खर्चा मेरे ध्यान में जल्दी आता है। मेरा कहने का तात्पर्य, अब मुझे बताइए, अब इन दिनों मैंने देखा है कि पूरे देश में देशभक्ति का एक भाव प्रखर रूप से प्रकटा है। हर कोई दिवाली का दिया जलाता है, लेकिन उसको देश का जवान दिखता है, देश के जवानों की शहादत दिखती है, भाव पैदा हुआ है। क्या हम 5 अच्छे गीत, अब महाराष्ट्र के लोग स्कूलों में 5 गीत एक साल में उड़िया भाषा में गाना शुरू करें, और उड़िया भाषा भाषी पढ़ने वाले उड़ीसा वाले 5 मराठी गीत गाना शुरू करें, जब मिलेंगे तब भाव क्या जगेगा, आप मुझे बताइए जी। हमारी कहावतें किसी भी भाषा में हम बोलते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी कहावतों का जो सेंट्रल थ्रेड होता है वो कॉमन होता है। शब्द अलग होंगे, अभिव्यक्ति अलग होगी, लेकिन जब सुनेंगे और अर्थ समझेंगे तो पता, अच्छा ये कहावत हमारे हरियाणवी में भी है यार, हम भी तो कभी बोलते हैं। इसका मतलब कि हमें जोड़ने वाली ताकत तो पड़ी है। एक बार पता चल जाता है, यार तुम भी तो वही बात करते हो जो मैं करता हूं, मतलब तुम और मैं भाषा अलग हो लेकिन अलग नहीं है, पहनाव अलग हो अलग नहीं है, खान पान अलग हो नहीं है, हम एक हैं, ये अपने आप पैदा होगा। देश में बिखराव के लिए बहुत रास्ते खोजे गए हैं, एकता को तो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया, और उसके कारण बिखराव ने क्या बर्बादी लाई है उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। 50 साल में इतनी बुराइयों को हमने अपने अंदर ऐसा प्रवेश कर दिया है कि वो बुरा है वो भी पता नहीं चलता, इतनी हद तक घुस गया है। तब जाकर के हमें प्रयत्न पूर्वक एकता को जो वाले जितनी चीजें हैं उसको पकड़ना होगा। और मैं इसको सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित रखना नहीं चाहता। मान लीजिए उड़ीसा के किसान मछली के काम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे छोटे तालाब में भी अच्छी मछली तैयार करते हैं, अच्छा मार्केट मिलता है। तो महाराष्ट्र में भी तो छोटे छोटे तालाब में मछली पैदा करने वालों को आकर के सिखा सकते हैं। महाराष्ट्र के लोग उड़ीसा में जाकर के अच्छी मछली, ज्यादा मछली कैसी होती है सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी लाभ सकते हैं। मान लीजिए वो उनकी खेती पेड़ी, चावल की खेती करने का उनका तरीका है, वहां ज्यादा पानी है, यहां पर चावल की खेती करने की दिक्कत है, क्या उनको कम पानी से चावल पकाना सिखाया जाए, और उनकी ज्यादा यील्ड है वो यहाँ के किसानों को सिखाया जाए। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का वो कारण बन सकता है, नहीं बन सकता है। बिना किसी यूनिवर्सिटी की मदद 2 क्षेत्र के किसान अपने अनुभवों को शेयर करें, हो सकता है कि नई चीज दुनिया को दे सकते हैं। फिल्में आज तो डबिंग हो सकता है, कोई बड़ा महंगा भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र उड़िया फिल्मों का फेस्टिवल करे, बॉलीवुड वालों को परेशानी नहीं होगी ना, लेकिन करे, मुंबई में मत करना, कहीं और करना, करे मानो, और उड़ीसा वाले मराठी फिल्मों का करे, भाषा को सहज समझा जाएगा। कभी उड़ीसा और महाराष्ट्र के सभी विधायकों का संयुक्त सम्मेलन हो सकता है क्या? और सिर्फ दोनों राज्यों की अच्छाइयों पर चर्चा करें, अच्छाइयों पर चर्चा करें। उड़ीसा के विपक्ष दल वाले को भी अच्छाई बोलनी पड़ेगी और महाराष्ट्र के विपक्षी दल को भी अच्छाई बोलनी पड़ेगी। सब मिलकर के अच्छाई की बात करेंगे तो अच्छाई की ओर जाने का रास्ता खुल जाएगा।
मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में एक दूसरे से सीखना, पाना, समझना बहुत कुछ है। हमारा ज्ञान, हमारा अनभिज्ञता, ये हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है, विशेष रूप से परिवर्तित करना है। आज सरदार साहब की जन्म जयंती पर इस महाअभियान का भी आरंभ हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जोड़ने के लिए है, और जोड़ने के लिए कोई नया एकता का इंजेक्शन नहीं देना है, बाहर से कोई इंटरवेंट नहीं करना है। राख लगी है, सिर्फ उसको निकाल करके उस ज्वाला को प्रज्वलित करना है, उस चेतना को प्रज्वलित करना है। और उसी बात को लेकर के मैं खास करके आपसे तो आग्रह करूंगा कि आप जरूर, जल्दी होगा तो भी जरूर देख के जाइए प्रदर्शनी को, और भी लोगों को प्रेरित करें। और इस प्रदर्शनी को सिर्फ स्टूडेंट देखे ऐसा नहीं, समाज के प्रबुद्ध लोग परिवार के साथ आने की आदत बनाए, उन्हें पता चले कि महापुरुष कौन थे, क्या क्या करके थे, और जो जीवन जी के गए हैं उससे बड़ी प्रेरणा नहीं होती है। मुझे विश्वास है कि ये प्रयास न सिर्फ सरदार साहब को अंजलि है, लेकिन सरदार साहब ने हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलने का एक प्रामाणिक प्रयास है। मैं फिर एक बार पार्थसारथी जी, उनकी पूरी टीम को इस भगीरथ कार्य के लिए बधाई देता हूं। जैसे आज आप एक म्यूजियम देख रहे हैं, मैंने एक प्रयास शुरू किया है, आजादी के आंदोलन की बातें सचमुच में बताता हूं, हमने देश के नागरिकों के साथ बहुत अन्याय किया है। आजादी का आंदोलन ये नेताओं का आंदोलन नहीं था, आजादी का आंदोलन जन सामान्य का आंदोलन था। बहुत कम लोगों का मालूम होगा 1857 में इस देश के ट्राइबल्स ने, बिरसा मुंडा समेत, जितना बलिदान इस देश के आदिवासियों ने दिया है हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन न आप में से किसी को पढ़ाया गया होगा, न किसी को पता होगा। हमने सोचा है शुरुआत में हर राज्य में जहां जहां आदिवासी जनसंख्या और आदिवासियों से जुड़ी घटनाएं हैं, एक वर्चुअल म्यूजियम आजादी के आंदोलन में आदिवासियों का योगदान, इस पर हम बनाएंगे। इस देश के लोगों ने इतना सारा दिया है जी, हम उस चीजों को जानने के लिए प्रयास करें, बनने का। धीरे धीरे मैं इन चीजों को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, और टेक्नोलॉजी के कारण ये चीजें कम खर्चे में हो सकती है, आजकल छोटी जगह में हो सकती है, और आने वाला व्यक्ति अपने सीमित समय में भी बहुत सी चीजों को काफी अच्छी तरह अनुभव कर सकता है। 3D के कारण और ज्यादा लाभ ले सकता है। इंटरेक्टिव होने का कारण बच्चों के लिए वो शिक्षा का कारण बन सकता है। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत में मेरी कल्पना यह है कि राज्य अपने राज्य के संबंधित मिनिमम 5000 क्वेश्चंस का एक डाटा बैंक बनाए। राज्य के संबंध में सवाल हो, उसमें जवाब भी हो, ऑनलाइन अवेलेबल हो, कि भाई राज्य का सबसे पहला हॉकी प्लेयर कौन था, राज्य का सबसे पहला कबड्डी प्लेयर कौन था, नेशनल प्लेयर कौन कौन है, कौन सी इमारत कब किसने बनाई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ रहते थे, क्या सारे इतिहास हो, लोक कथाएं हो, 5000 सवालों का बैंक। फिर उसकी क्विज कंपटीशन करें, स्टेट में भी करें। अब मान लीजिए महाराष्ट्र की 5000 सवालों की क्विज बैंक है, उड़ीसा की 5000 सवालों की क्विज बैंक है। महाराष्ट्र के बच्चे उड़ीसा के क्विज कंपटीशन में भाग लें, उड़ीसा के बच्चे महाराष्ट्र की क्विज कंपटीशन में भाग लें। अपने आप दोनों राज्यों के बच्चों को उड़ीसा भी समझ आ जाएगा, महाराष्ट्र भी समझ आ जाएगा। ये पूरे देश में लाखों सवालों का बैंक बन सकता है जी। क्या पाता वो पा सकते हैं। तो एक बड़े व्यापक फर्क पर, और जिसमें डिजिटल वर्ल्ड का ज्यादा उपयोग करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाने का प्रयास है।
मैं फिर एक बार इस प्रयास को करने वाले सबको बधाई देता हूं, सरदार साहब को आदरपूर्वक नमन करता हूं, अंजलि देता हूं और देश की एकता के लिए काम करने के लिए देशवासियों से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।